السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 14۔ وہ آہستہ سے کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کو بیڈ پر بری طرح سے روتے ہوئے پایا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اس بند اندھیرے کمرے میں دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کی ملازمہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کسی کو بھی کمرے میں آنے سے منع کر رکھا تھا تو وہ کیوں آئی تھی اس کی اجازت کے بنا؟ کیوں آئی ہوں یہاں میں نے کمرے میں کسی کو بھی آنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے بولی، بی بی جی مجھے ایک بہت ضروری کام تھا آپ سے۔ دیکھیں میرا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو میرے بھائی نے کہا تھا تو مجھے آنا پڑ گیا، ورنہ یہ تو آپ بھی جانتی ہے کہ ہمارا دوسری حویلی والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں تو شادی کے بعد سے اپنے مائکے بھی نہیں گئی، کہاں دوسری حویلی سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا؟ تمہید باندھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ دوسری حویلی کا نام سن کر افشین کو ایک چھوٹی سی امید نظر آئی۔ وہ دوسری حویلی کے بارے میں بات کیوں کر رہی تھی؟ جو بھی کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو، دوسری حویلی کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ جب سے اس کے نکاح کی خبر ملی تھی وہ کمرہ بند کر کے یہیں اندھیروں میں پڑی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے لے کر پریشان تھے لیکن اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ بی بی جی خدا کے لیے میرا نام مت لیجیے گا، میرا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ایک کاغذ نکالتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، جبکہ لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ اس کے ہاتھ سے کاغذ بےتابی سے چھین چکی تھی۔ بی بی جی یہ خط آپ کو دوسری حویلی کے ساگر کاظمی نے لکھا ہے، وہ آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی جی خیال رکھیے گا میرا نام کہیں نہ آئے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا اور اس چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، جبکہ اپنی بیوی کو دوسری حویلی کے مرد کا لکھا خط اتنی بےتابی سے چھینتے اور پھر خوش ہوتے دیکھ وہ بھی شکی نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آگ صرف دوسری حویلی نہیں بلکہ یہاں بھی برابر کی لگی ہوئی تھی۔ یہ دو خاندان آپسی دشمنی نہ جانے کتنے سالوں سے نبھا رہے تھے اور یہاں ان کے بچے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ اور اس کی بیوی کی پاگلوں جیسی حالت بھی تو اس بات کی گواہ تھی کہ اس خط نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے گی، اور اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہے تو مجھے دے سکتی ہے۔ میرا بھائی وہیں ان کی حویلی میں ملازم ہے اور ساگر کاظمی نے میرے بھائی کو ایک کام کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے ہیں۔ اسے دیکھ کر بتانے لگی تو افشین فوراً سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی تھی اور وہاں سے سب سے قیمتی چیز اٹھا کر وہ اس ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑا چکی تھی۔ یہ آج سے تمہارے ہیں، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، لیکن یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ کاغذ سے دکھاتے ہوئے بولی تو ملازمہ خوش ہوتے ہوئے اس کے سونے کے جھمکے اپنے دوپٹے میں چھپا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں قید تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں محفوظ کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ ایک میٹھی سی جسارت کرتا پیچھے ہٹ کر اسی جگانے لگا تھا۔ کیا ممکن ہے کہ میں تم سے اسی طرح خود کو جگانے کی امید رکھوں؟ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ امایا اس کے سینے میں منہ چھپاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ مطلب کہ اس طرح کی امید صرف تم مجھ سے رکھ سکتی ہو؟ یہ بھی اچھی بات ہے، اب سے میں تمہیں روز ایسے ہی جگایا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے بھی جاگ جاؤ تو تم میری باہوں سے نکل کر نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ کون ہے میرا؟ آپ جو کہے جیسا کہے۔ وہ بہت میٹھا بولتی تھی، اس کے لہجے میں مٹھاس تھی جس پر وہ دل و جان سے قربان تھا۔ بیوی کو اتنا فرما بردار بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، شوہر کو بھی اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے نا؟ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، یعنی کہ تمہیں میرے اچھے ہونے سے مسئلہ ہے تو برے بن جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ اس کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر جا بجا محسوس کرتے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ احتجاج اور مزاحمت کرنا تو اس نے سیکھی ہی نہ تھی۔ ذریعہ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ دادا جان بہت زیادہ پریشان ہے نا؟ وہ اپنی گستاخیوں میں مصروف تھا جب اس کی آواز سن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔
तुम्हें नहीं लगता कि ये वक्त किसी लड़की को सोचने का नहीं बल्कि अपने शौहर की मोहब्बत को महसूस करने का है? वो उल्टा उसे सवाल करने लगा। आप जो कहे, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में सोचकर भी परेशानी हो रही थी। घर में बहुत परेशानी चल रही है, दादा जान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तुम बस अपने शौहर की परेशानी पर गौर किया करो, बाकी सारी परेशानियों को तुम्हारा शौहर देख लेगा। उसकी थोड़ी को ऊंचा करते हुए उसके लबों पे अपने लब रख चुका था, जबकि इस दफ़ा माया बिना कोई भी बात किए खामोशी से उसकी गर्दन में अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए खुद को मुकम्मल तौर पर उसकी कैद में ले चुकी थी। उसकी इस फरमाबरदारी पर जरिया मुस्कुराते हुए उसकी नाजुक से खुशबू से भरे वजूद को अपनी बाहों में कैद करते हुए उस पर झुकता चला गया। दादा जान की परेशानी में वो भी परेशान था। शायज़म की वजह से रात कमरे में से आने में काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उससे बहुत कुछ बताना पड़ गया था। लेकिन वो उसका भाई था, उसके राज रखना जानता था। वो ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि वो रिदम के लिए बहुत ख़ास जज्बात रखता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खुशी उसे इस बात की हुई थी कि अमाया दुल्हन की तरह तैयार उसकी राहों में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। पता नहीं क्या होने वाला था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे ही उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। उसने सबको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसकी मोहब्बत को समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। और अब उसने एक फ़ैसला कर लिया था। उसे अपनी मोहब्बत चाहिए थी किसी भी कीमत पर, और फिर उसकी शादी जिससे करवाई जा रही थी वो किसी भी तरह सागर काज़मी के हम पल्ला नहीं था। वो एक बेहतरीन इंसान को छोड़कर एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करती जिसकी नज़रों में औरत का कोई मकाम न था। इन्हीं दिनों गांव में होने वाले मुकाबले ने दुश्मनी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। अगले कुछ ही दिनों में गांव में घोड़े की रेस होने वाली थी। दोनों हवेली के नौजवान एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आमने आने वाले एक दूसरे के सामने आने वाले थे। जो भी हारता वो जीतने वाले के सर पर जीत की दस्तार बांधता, और फिर एक साल तक ये फरीक जीत की खुशी मनाता और दूसरा हार का दुख। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहती थी। उसने पैगाम भेज दिया था। अब वो बेचैनी से दूसरी तरफ से मिलने वाले पैगाम का इंतज़ार कर रही थी। अभी तक उसकी मुलाजमा की वापसी भी नहीं हुई थी। हवेली में वही बताकर गई थी कि वो अपने मायके जा रही है। वो बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उसकी आँख खुली तो खुदाश कमरे में नहीं था। जब से दादा जान की तबीयत ख़राब हुई थी वो कमरे में कम ही रहता था। कल वो काफ़ी दिनों के बाद कमरे में आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी में उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इस कमरे में नहीं रहेगी। कल रात तो वो उसके बेहद करीब था, यहाँ तक कि उसकी गर्म सांसों के लम्स को अपने बेहद करीब महसूस कर चुकी थी। उसने आहिस्ता से करवट बदल कर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। उसे लगा था वो यही सोचेगा कि वो गहरी नींद में है, लेकिन वो जान चुका था कि वो जाग रही है, और उसने उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी करने के बजाय अपनी जगह ही बदल गई थी। खुदाश बहुत अजीब था, उसकी समझ से बाहर। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो अपनी ज़िद के लिए हर हद पार कर जाएगा, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो उसकी मर्ज़ी के बिना सांस लेना भी छोड़ देगा। वो फ्रेश होकर नीचे जाने का इरादा रखती थी जब उसे रिदम का ख्याल आया। ये भी अजीब सी लड़की थी। अभी उसे आए हुए चंद घंटे ही हुए थे, लेकिन वो अपने बदतमीज़ अंदाज के काफ़ी जौहर दिखा चुकी थी। और खुदाश ने अम्मा के सामने कहा था कि उसके होते हुए शायद उन्हें हरम की कमी महसूस नहीं होगी। कहाँ हरम और कहाँ ये बदतमीज़ लड़की, वो सिर्फ सोच कर रह गई थी। माजी गांव में आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलने लगी थी कि सागर काज़मी और माजिद हुसैन की बेटी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनकी आपस में काफ़ी मेल मुलाकात भी थी। ये बात गांव में किसी तरह से फैली थी। किसी को पता न चला था, लेकिन ये बात माजिद शाह के लिए काफ़ी बुरी साबित हो रही थी, क्योंकि बात उनकी बेटी की थी और वो अपनी बेटी की ज़ात पर किसी तरह का सवाल नहीं आने दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द अफशीन की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अपनी बेटी का नाम वो किसी की ज़बान पर नहीं आने देना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि काज़मी ख़ानदान वालों ने ही ये बात फैलाई है ताकि उनकी बेटी बदनाम हो, और ऐसा ही हो रहा था। इसलिए अपनी बेटी की शादी में वो मज़ीद देर नहीं करना चाहते थे।
घोड़े की रेस से पहले पहले ही वो अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करने का इरादा रखते थे और दूसरी हवेली के लोग भी ऐसा ही चाहते थे कि जल्द से जल्द माजिद शाह की बेटी की रुखसती हो जाए ताकि सागर काज़मी अपना सारा ध्यान रेस पर दे सके। उस लड़की ने उनके बेटे का दिमाग खराब कर दिया था। एक तो खानदान से बाहर लड़की पसंद करके सागर ने पहले ही अपने खानदान को अपने खिलाफ कर लिया था और फिर दूसरी तरफ लड़की भी दुश्मन की बेटी। और फिर सबसे गलत बात जो थी वो ये थी कि सागर का सारा ध्यान ही उस लड़की की तरफ चला गया था। उसे दुश्मनी या किसी रेस से कोई लेना देना ही नहीं था और ये बात उनके लिए बहुत गलत साबित हो सकती थी। इसीलिए वो यही चाहते थे कि माजिद काज़मी की बेटी की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। अब दूसरी तरफ अब हाल में अस्सलाम वालेकुम। रिदम रिदम कमरे से निकलकर सीधी नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आई थी। इस वक्त उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वो कुछ खाना चाहती थी। सबको देखते हुए उसने सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। रिदम बेटा, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं है, दरअसल तुम्हारे ताया अब्बू की कुर्सी है। बेटा यहाँ आ जाओ, अभी तुम्हारे ताया अब्बू आते ही होंगे। असल में उन्हें वहाँ बैठकर खाने की आदत है ना, वो किसी और कुर्सी पर बैठते नहीं हैं। ताई अम्मी ने बहुत मोहब्बत से उसे मुखातिब करते हुए कहा। डियर आंटी, अंकल वहाँ बैठकर खाएं या यहाँ बैठकर, टेस्ट तो एक जैसा ही आएगा ना। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कुर्सियाँ बदलने की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। वो एक प्लेट अपने सामने घसीटते हुए आराम से बैठकर नाश्ता करने लगी थी, जबकि ताई अम्मी ने मजीद उससे कुछ भी ना कहा। जबकि कमरे से निकलकर राहत साहब भी उसे अपनी कुर्सी पर बैठते देख चुके थे। वो आपकी कुर्सी पर रिदम, ताई अम्मी ने कुछ बताना चाहा। कम ऑन आंटी, इस कुर्सी पर कोई नाम तो नहीं लिखा उनका, वो कहीं भी बैठ कर खा लेंगे, करना तो नाश्ता ही है ना। उसके अंदाज में बदतमीजी का ज़रा सा अंसर शामिल था। जब खुदाश दादा जान को सहारा दिए नाश्ते की मेज़ पर लाया था। अरे वाह, आज तो हमारी पोती भी हमारे साथ नाश्ता करेगी। दादा जान उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। अभी तक वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। अरे राहत, तुम खड़े क्यों हो, बैठो। दादा जान ने उन्हें खड़े देखकर कहा। ताया अबू की कुर्सी पर तो रिदम बैठ गई है। रिदम, तुम यहाँ बैठा करो, सामिया उसे देखते हुए बोली। यार हद है, कुर्सी के लिए इतना ड्रामा। आइए बैठ जाइए इस कुर्सी पर, जैसे कुर्सी नहीं किसी बादशाह का सिंहासन हो गया। करिए नाश्ता, मेरी तो भूख ही मिट गई। वो झटके से उठकर अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि सब ने उसकी बदतमीजी को नोट किया था। सामने तुम मुंह बंद नहीं कर रख सकती, इतनी भी कोई बात नहीं थी। एक कुर्सी पर ही तो बैठी थी वो, और वो कौन सा इस घर की आदि है जो उसे सब कुछ पता होगा। तुम्हें उसे इस तरह से नहीं टोकना चाहिए था, ताई अम्मी ने उसे सख्ती से कहा। भाभी, इसमें उसे डांटने की क्या ज़रूरत है। एक तो ये बदतमीज़ सी लड़की हमारे घर आ गई है और ऊपर से उसके नखरे, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती और आप भी आगे से मेरी बेटी को डांट रही है। चाची को उनका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो हमारे घर नहीं बल्कि अपने घर आई है, उसे हम सब के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हॉस्टलों में धक्के खाकर पली बड़ी है, उसे क्या पता एक घर में किस तरह से रहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ को समझेगी, जानेगी। उसे वक्त की ज़रूरत है, हम सबको उसका साथ निभाना होगा। उसे ज़रा ज़रा सी बातों पर टोकने की बजाय उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वह हम सब के लिए कितनी ख़ास है। वो मेरे सागर की बेटी है, वो इस घर की बेटी है। ताया अबू उन्हें देखते हुए बोले तो सबके चेहरों पर खामोशी छा गई। राहत बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे समझना होगा। पता नहीं उसके दिल में हमारे खिलाफ क्या क्या डाल रखा होगा। उसे वक्त की ज़रूरत है और हम सबको मिलकर उससे इस घर की बेटी बनाना होगा। दादा जान ने भी राहत साहब का साथ दिया था। चाची और सामिया को इनका अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ आज उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज परवीन आ गई थी। किरण उसका पैगाम भी लेकर आई होगी। वो बेचैनी से उसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। क्यों परवीन, क्या खबर लाई हो, सब कुछ ठीक तो है ना। परवीन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, वो भागती हुई उसके पास आई थी। कुछ भी ठीक नहीं है बीबी जी, आपकी और सागर साहब की मोहब्बत की दास्तान पूरे गाँव में फैलाई जा रही है। सागर साहब
सागर साहब को बेइज्जत किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप पर यह इल्ज़ाम तक लगा दिया गया है कि आपने उनके ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, दुश्मन के बेटे से दिल लगाकर। और तो और मुझे तो हवेली वालों ने अंदर घुसने भी नहीं दिया। कह दिया कि जिन लोगों का ताल्लुक इस हवेली से है वो उस हवेली में कदम भी नहीं रख सकते। मैं तो अपने भाई से भी मिल भी ना सकी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पर खेल कर सागर साहब का पैगाम आपके लिए लेकर आई हूँ। परवीन सागर तो ठीक है परवीन सागर तो ठीक है ना, उन्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो उसे किसी पीर की तरह बेड पर बिठाते खुद किसी मुरीद की तरह उसके पैरों में बैठ गई थी। न जाने कैसे इतने दुश्मनों में उसके महबूब का पैगाम उसके लिए लेकर आई थी। बीवी पैगाम ये रहा। वो एक कागज़ उसके हवाले करते हुए राजदाराना अंदाज में बोली। उसने फ़ौरन कागज़ लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ, बड़ी पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो आ जाना। आज हम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। यहाँ के रस्म और रिवाज हमारी मोहब्बत के आड़े नहीं आ सकते। अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्ची मोहब्बत की है तो आज आ जाओ हमेशा के लिए मेरे पास। याद रखना कि अगर आज तुम ना आई तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। हमारी मोहब्बत की दास्तान यही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये याद रखना, क्योंकि मुझे इस रास्ते पर लाने वाली तुम थी। मैंने तुम्हारी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया तो तुमने मेरा हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें इन रस्मों रिवाजों से इतना ही डर लगता था तो पहले पीछे क्यों ना हटी। अफशीन मेरे बढ़ते हुए कदमों को क्यों ना रोका। मैं नहीं लड़ सकता इस ख़ानदान से, नहीं लड़ सकता इन जाहिल लोगों से। हाँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, इतना दूर कि ये लोग कभी भी हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझ पर यकीन करके चली आओ। मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। वो न जाने कितनी दफ़ा ये पैगाम पढ़ चुकी थी। बार बार वही अल्फाज पढ़ कर उसकी सोच उसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी जो वो कभी नहीं उठाना चाहती थी। एक तरफ उसका महबूब था तो दूसरी तरफ उसका ख़ानदान, उसकी बरादरी, उसकी इज्जत, उसके बाप की पगड़ी। वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती, लेकिन वो जानती थी ये लोग इन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे। वो कभी भी एक दूसरे को पा नहीं सकेंगे। अपनी मोहब्बत के लिए उसे एक ना एक दिन तो बड़ा कदम उठाना ही था। न जाने कितनी मोहब्बत की कहानियाँ इन चार दीवारियों में जन्म लेकर ख़त्म हो चुकी थी। इन मर्दों को कभी तौफीक ना हुई थी कि वो अपनी बहन बेटियों की आरज़ू पूछ लेते। उनके लिए उनका हुक्म ही सब कुछ है, और फिर इस हुक्म को मानने के लिए उन्हें मजबूर करने वाली उनकी माएँ थीं। चंद दिन पहले उसे भी पता चल चुका था कि जल्द ही उसे किसी की दुल्हन बना दिया जाएगा, और उसकी माँ ने कहा था बेहतर है कि काज़मी हवेली वालों के साथ जो ताल्लुकात वो जोड़े हुए हैं उनका गला यहीं पर घोट दे, वरना अंजाम से वो बेखबर नहीं है। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा था। उसकी बहनें, उसकी फूफू, उसकी माँ, किससे उनकी मर्जी पूछी गई थी? किसी से भी नहीं। इस खानदान में वही होता आया था जो इस खानदान के मर्द चाहते थे। कभी किसी औरत से इजाज़त मांगना तो दूर की बात है, उन्हें शादी से पहले एक दूसरे की तस्वीर तक नहीं दिखाई जाती थी। वो नहीं गुजार सकती थी एक ऐसी ज़िंदगी जो उसे दो पल का सुकून न दे सके। वो फैसला कर चुकी थी कि आज रात यहाँ से हमेशा के लिए चली जाने वाली थी। इन लोगों की इज्जत की खातिर कितनी औरतें अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुकी थी, कितनी औरतें अपना आप भुला चुकी थी। वो अपना आप भुलाने को तैयार न थी। उसे नहीं होना था इन रस्मों पर कुर्बान। उसे अपनी ज़िंदगी जीनी थी। उसे अपने महबूब के साथ अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत से रहना था। वो नहीं रह सकती थी इस माहौल में। उसे आज़ाद होना था। दूसरी तरफ, आज आप नहीं जाओगे बाहर? तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। वो उसके साथ बाहर बैठा था जब हरम को कहते सुना। नहीं, मैं क्यों कहूँगी, आपका घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? वो जल्दी से बोली। ये तुम्हारा घर है हरम जान, तुम्हारा हक है इस पर, और मुझ पर भी। तुम मुझसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी कहने का हक रखती हो। वो तो अपने तमाम तर जज्बात का उसे मालिक बना देना चाहता था, लेकिन शायद वो उसके जज्बात को समझना ही नहीं चाहती थी, या ये उसकी समझ से बाहर थे। अच्छा, मतलब कि ये मेरा घर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि सोफ़ा उठवा कर वहाँ रखवा सकती हूँ, और ये एलईडी भी इस तरफ लगा सकती हूँ। वो खुश होते हुए पूछने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल जान, तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकती हो। कोई तुमसे कुछ भी सवाल पूछने का हक नहीं रखता।
तुम जो चाहे करो। यहाँ इसने खुले दिल से उसे इजाज़त दी थी। वो चाहता भी यही था कि वो उसके घर को अपना समझे। तो फिर उठे, ये सोफ़ा आप रखेंगे और ये एलईडी उतार कर इस दीवार पर लगाएंगे। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई थी। मतलब ये सब कुछ मैं करूँगा? वो उसे हुक्म देकर खुद छोटे से लकड़ी की मेज़ पर बैठ गई थी। क्यों आप नहीं कर सकते? अभी तो आप कह रहे थे कि आप पर और आपके घर पर मेरा हक है। तो फिर तो मैं आपसे अपनी हर बात मनवा सकती हूँ ना। उसे देखकर सवाल करने लगी। बिल्कुल जान, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, लेकिन ये सब कुछ मैं अकेले कैसे करूँगा? तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये सिर्फ हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। उसे फारिग नहीं बैठने देना चाहता था। मेरे वीरू कहते हैं कि मैं बड़े बड़े काम नहीं कर सकती, मैं छोटी हूँ, और ये तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे करूँगी? वो मासूमियत से बोली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कौन आ गया? उस्मा तो रात को आएगी ना। वो भाग कर उसके पीछे छुपी थी, जबकि वो मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल चुका था। सामने ही से आम हाथों में कुछ कागजात पकड़े खड़ा था। तुम्हारा काम कर दिया मैंने, अब तुम मुझे अपने हाथ की मज़ेदार सी चाय पिला दो। वो हरम के सर पे हाथ रखते हुए सोफे पर बैठने ही लगा था कि पीछे से ये शाम बोल पड़ा। हाँ क्यों नहीं, चाय तो तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले हरम घर की थोड़ी सेटिंग चेंज करवाना चाहती है, तो इसमें मेरी हेल्प करो। वो उसके बैठने से पहले ही कहने लगा। जी जी सयाम सर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, वरना ये शाम सर को ये सब कुछ अकेले करना पड़ता। हरम ने भी बीच में बोलना अपना फर्ज समझा था। तुम इस बेचारे से अकेले ये सब करवाने वाली थी, ये नहीं कि तुम खुद अपने शौहर की थोड़ी सी हेल्प करवा दो। सयाम ने ये शाम की मदद करते हुए उससे कहा था। मैं कैसे करवा सकती हूँ मदद, मैं तो छोटी हूँ ना, और ये सोफ़ा कितना बड़ा है। उसने एक बार फिर से मासूमियत से शक्ल बनाई थी। हाँ यार, ये तो वाकई बहुत छोटी सी है, और क्या? तो क्या इस मासूम सी बच्ची को चाय बनाने आती है, या ये काम भी हम बड़ों को ये सब करने के बाद खुद ही करना पड़ेगा? श्याम ने पूछना जरूरी समझा। मुझे पीनी आती है, उसने गोया बात खत्म की थी। श्याम तो उसे देख कर रह गया, जबकि ये शाम को अपनी मासूम सी बीवी पर बहुत प्यार आ रहा था। तो ये काम करवा दे, चाय मैं तुझे खुद अपने हाथों से बना दूंगा। और हरम के पेपर्स ले आया तू? वो काम करते हुए उससे पूछने लगा था। हाँ बिल्कुल, मैं ले आया हूँ, और कल से हरम क्लास भी ज्वाइन कर सकती है। कौन सी क्लास? इन दोनों को अपने बारे में बात करते सुन उसने सवाल पूछा था। हरम, कल से तुम अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर रही हो, यहाँ के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया है, और मज़े की बात यह है कि अब मैं सारा दिन तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि मैं उसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और सयाम भी वहीं पर रहता है। उसने तफसील से जवाब दिया था। क्या मतलब, हम वापस कब जाएंगे फिर? वो उन्हें देख कर पूछने लगी। हाँ, अब हम यहाँ ही रहेंगे हरम, हमेशा एक दूसरे के साथ। वो बहुत प्यार से जवाब दे रहा था। मीशा मीशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना मैं यहाँ के कॉलेज में पढ़ूंगी, यहाँ तो मेरी कोई दोस्त भी नहीं होगी। वो परेशान सी हो गई थी। उसके चेहरे की उदासी पर सयाम भी परेशान हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इशाम ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने की कोशिश की थी। आप मेरे दोस्त थोड़ी ना होंगे, आप तो खड़ूस टीचर होंगे, पहले जैसे। वो मुंह बसोर कर बोली तो सयाम को हंसी आ गई। वो अक्सर उससे कहता था कि तुम बहुत खड़ूस हो, स्टूडेंट्स तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन निशाम उसकी इस बात को कभी कबूल नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूंगा, और यकीनन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाऊंगा। वो उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शायद अभी वो इस बात को कबूल कर रही थी कि अपनी फैमिली के साथ वो अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ अब माजी, आधी रात का वक्त था। आखिर आज वो हवेली से बाहर निकल आई थी। हवेली से बाहर कदम निकालते हुए उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाप की पगड़ी, उसके भाइयों की इज्जत, बहुत कुछ रौंद कर वो जा रही थी। अपनी ज़िंदगी की खुशियों की खातिर वो अपने बाप भाई को रुसवा करके जा रही थी। इसका अंजाम भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अगर ज़िंदगी में वो किसी भी मकाम पर अपने बाप भाइयों को मिली, तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शायद उन लोगों को उस पर तरस आ जाए, आखिर वो अपने बाप की लाडली थी, लेकिन उसको ये कदम उठाने पर मजबूर भी तो वही लोग कर रहे थे। वो उसकी शादी एक ऐसे शख्स से करवा रहे थे जिसकी नज़र में औरत ज़ात की अपनी कोई अहमियत ही नहीं थी। उसके लिए औरत का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी वो कैसे बर्बाद कर सकती थी?
उसे एक इज्जत करने वाला हमसफ़र चाहिए था। थोड़े से वक्त में ही सागर को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी वो किस तरह का इंसान है, और सागर काज़मी इतना अच्छा इंसान तो था ही कि उसके लिए वो अपने बाप भाइयों की दौलत जायदाद को ठोकर मार कर आ जाती। लेकिन वो सिर्फ दौलत जायदाद को ठोकर मार कर नहीं आई थी, अपने बाप भाइयों की इज्जत पर बट्टा लगा कर आई थी। दूसरी तरफ, मेरे कपड़े निकाल दो दिशा, मुझे जाना है, बाहर काम है ज़रूरी। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मैं आपके हुक्म की गुलाम नहीं, खुदाश साहब खुद ले ले, और आइंदा भी मुझे इस तरह का कोई हुक्म भी ना देने से पहले ये बात याद रखे। वो बेहद बदतमीज़ी से बोली। खुदाश को उसका ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा। वो उसकी हर अदा हर नाज उठाने को तैयार था, लेकिन इस बार हमला उसके शौहराना हुकूक पर हुआ था, और ये चीज़ खुदाश को गवारा ना थी। दिशम, मैंने कहा मेरे कपड़े निकाल कर दो अभी, और इसी वक्त, और इस बार कोई बकवास मत करना। वो जैसे खुद को कंट्रोल करते हुए बोला था, और मैंने कहा कि आप खुद ले लें, मैं आपके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। वो अभी बोल ही रही थी कि अचानक खुदाश ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया। बोलो, क्या बोल रही थी तुम? दूर से तो मुझे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो उसका चेहरा अपने बेहद करीब किए बोल रहा था। उसकी गर्म सांसों का लम्स वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैं वो उसके इतने करीब था कि उससे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बीवी हो मेरी दिशम, खुदाश काज़मी, मुझसे जुड़ा हर काम तुम करोगी, और बहुत अच्छे से करोगी। तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो। औरत की अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है मुझे। मनचाही लेकर आया हूँ, इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना ये आवाज़ मुँह से निकालने से पहले 1000 बार सोचती। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दो, रिवायती शौहर बनने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे साथ सख्ती करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे वॉर्न कर रहा था। आपके सारे रूप देख चुकी हूँ मैं। आप कल भी बुरे थे और आज भी बुरे हैं, और फिर वो जो शख्स अपनी ही मासूम बहन का कत्ल कर दे, इससे कोई किसी अच्छे की उम्मीद कर भी नहीं सकता। ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे डर जाऊंगी या खामोश होकर बैठ जाऊंगी। मैं आपका कोई सितम नहीं सहूंगी। खुदाश काज़मी, मैं बहुत जल्द आप पर खुला का केस करूंगी। चटाख, इसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि खुदाश का हाथ उठा और उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ गया। आज ये नापाक लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला है, अगर आज के बाद निकाला तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो गुस्से से उसे पीछे की तरफ धक्का देता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखी उसके दिए दर्द को महसूस कर रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उस शख्स ने उस पर हाथ उठाया था। उसने उसे थप्पड़ मारा था। आखिर था तो मर्द ही ना। औरत की आवाज़ को कैसे बर्दाश्त करता, कैसे खुद को गलत और सही उसको सही कहता। आखिर खुदाश काज़मी, तुमने भी साबित कर दिया तुम इस ख़ानदान के बाकी मर्दों जैसे ही हो। लेकिन तुम जैसे मर्द के साथ मैं नहीं रह सकती, जो औरत की आवाज़ को दबाकर खुद को मोतबर साबित करने की कोशिश करते हैं। और फैसला करते हुए वो उठी थी, और अब वो सीधी दादा जान के कमरे की तरफ जा रही थी। वो कोई अनपढ़ गंवार औरत ना थी जो चुपचाप शौहर की मार खाती और मुंह बंद करके सब कुछ बर्दाश्त करती। उसे अपने लिए लड़ना था। वो बंद कमरे में आंसू बहाकर खुद को मजलूम साबित नहीं कर सकती थी। वो दादा जान को उनके पोते का ये कारनामा दिखाने जा रही थी। अब माजी, सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब तक तो घर में ये खबर भी फैल चुकी होगी कि घर की लड़की गायब है। पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हवेली में क्या हो रहा होगा, कहीं बाबा जान अम्मा को कुछ ना कहे। मुझे यकीन है कि वो लोग हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि सागर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों ने मस्जिद पहुंच जाना था, जहां उन दोनों का निकाह होने वाला था। वो ये सफ़र निकाह के बाद ही शुरू करना चाहता था। वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, यहाँ से बहुत दूर। मुझ पर यकीन रखो अफशीन, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ से निकल कर हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुमने मुझ पर यकीन किया है, मैं तुम्हारा यकीन कभी टूटने नहीं दूँगा। देख लेना, तुम्हें मेरे साथ पर फ़ख्र होगा। वो उसे अपना यकीन दिलाते हुए न जाने कहाँ ले जा रहा था, और वो आंखें बंद करके उसके साथ इस सफ़र की शुरुआत कर चुकी थी जिसका कोई इख्तिताम न था। वो जानती थी ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। शायद वो सारी ज़िंदगी उन लोगों से भागते रहेंगे और फिर एक दिन पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे।
لیکن پھر بھی اس سفر میں اس کا ہم سفر اس کی محبت تھا، اس کی چاہت تھا، وہ شخص تھا جس کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، اور اسے یقین تھا وہ اس سفر کو پوری ایمانداری سے نبھائے گا۔ اب حال سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے شمالی علاقوں کی طرف چلے، لیکن تمہاری کنڈیشن کو دیکھ کر ارادہ کینسل کر رہا ہوں۔ ذریعہ بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بناتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ آپ چلے جائیں نا، میری وجہ سے آپ اپنے ارادے نہ بدلیں۔ میں تو اب کافی ٹائم تک آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے بنا اب میں کہیں نہیں جا سکتا، لڑکی بہت خاص ہو گئی ہو تم میرے لیے، لیکن یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گرا چکا تھا۔ اگر اتنی پاس آ کر کچھ کہو گی تو وعدہ کرتا ہوں برا نہیں مانوں گا، لیکن دور سے کہو گی تو برا بھی مناؤں گا اور تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ اس کے گرد باہوں کے حصار تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے اس انداز پر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اب بولو بھی، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تم نے اتنا فاصلہ طے کیا ہے؟ وہ اسے شیشے سے لے کر بیڈ تک کا سفر دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا، آپ کی جو کزن غائب ہوئی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، اور اب کیا شادی نہیں ہوگی؟ اس نے آخر اپنا سوال مکمل کر ہی لیا تھا، جو اتنے وقت سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ لڑکی واپس آ جائے اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگا۔ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا چاہوں گی، میں تو بس پوچھ رہی ہوں آپ سے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ اللہ نہیں چاہے گا ایسا، انشاءاللہ۔ ذریعہ شاہ کے دل و دماغ پر ایک جادوگرنی نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، اب ذریعہ شاہ اس سے دور کبھی بھی نہیں جا سکتا، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ جادوگرنی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں جادوگرنی، نام جاننا چاہو گی اس کا؟ الٹا سوال کرنے لگا۔ امایا نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کا نام امایا ذریعہ شاہ ہے، بہت چالاک جادوگرنی ہے، ایسا اثر دکھاتی ہے کہ اپنے جادو کا سامنے والا چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ مزے سے اسے بتا رہا تھا۔ جی نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں عام سی انسان ہوں جسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو ذریعہ مسکرا دیا۔ لیکن میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آنے والی ہے، جس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ہمارا ایک پیارا سا بچہ ہوگا جو ہم دونوں سے بہت زیادہ پیار کرے گا، اور ہماری پیاری سی جنت ہوگی جس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ آنے والے وقت سے تو دونوں ہی بے خبر تھے۔ زندگی کب کیا رخ اختیار کر جائے کوئی بھلا کیا جانتا ہے۔ کل رات جب ذریعام نے اسے پوری بات بتائی تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ذریعام ردم سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے ولیمے اور امایا کو اپنا نام دینے کے لیے سارا ڈرامہ کیا تھا، لیکن اس ڈرامے میں اس نے ردم کو غلط جگہ پہنچا دیا تھا۔ وہ کبھی بھی ردم کو کاظمی حویلی بھیجنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ذریعام کا کہنا تھا کہ اس نے ردم کو کاظمی ہاؤس بھیج کر اچھا کیا ہے، ردم کا اصل گھر وہی ہے، اور ان لوگوں کو یہ بات جاننے کا پورا حق ہے کہ ان کی پوتی اس دنیا میں ہے، اور باقی جہاں تک بات اس کی محبت کی ہے تو بہت جلد اس کا رشتہ لے کر وہاں جائیں گے، اور ان دونوں خاندانوں میں اتنے سال سے جو یہ دشمنی چل رہی ہے اسے رشتہ داری میں بدل لیں گے۔ اور ذریعام کو یقین تھا کہ ایسا ممکن ہے، لیکن شاہ اعظم کی سوچ اس سے الگ تھی۔ وہ جانتا تھا ضروری نہیں کہ جیسے وہ لوگ سوچے ایسا کچھ بھی ہو جائے۔ جو دشمنی اتنے سالوں ختم نہ ہو سکی وہ بھلا آگے بھی کیسے ختم ہو سکتی تھی، لیکن شاہ اعظم ردم کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ محبت جیسے احساس سے آشنا ہوا تھا، اور وہ اس احساس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہ سب کچھ کیا ہے، اور آپ یہ اتنا سارا سامان میرے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ انہیں اتنے سارے شاپنگ بیگز لاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ ردم بچے، یہ ساری شاپنگ ہم نے تمہارے لیے کی ہے، سوچا تمہیں ضرورت ہوگی ان سب چیزوں کی، ابھی تو ہم یہی لائے ہیں، باقی اور جو بھی چاہیے تم خود اس کے ساتھ جا کر لے آنا۔ باقی جو ہمیں سمجھ آیا وہ ہم لے آئے ہیں۔ تایا ابو اسے دیکھتے ہوئے
दायाबू ने उसे देखते हुए कहा। और आपको क्यों कर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी? वो उल्टा उनसे सवाल करने लगी। मेरी जान, हर इंसान को ज़रूरत होती है, तुम्हें भी तो। जी जी आंटी जी, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी सारी ज़रूरियात मेरे नाना जान पूरी करते हैं और मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उठा कर ले जाइए, सारी चीज़ें आप अपनी बेटियों को दे दीजिएगा। वो मैं अपनी ज़रूरत का हर सामान अपने साथ लेकर आई हुई हूँ, तो ये मेरी ज़रूरत नहीं है। वो ताई अम्मी की बात काटते हुए बोली थी। तो भी रख लो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुशी से लेकर आए हैं। तुम्हें पता है, आज तक तुम्हारे ताया ने कभी अपनी बेटियों के लिए भी शॉपिंग नहीं की, यहाँ तक कि मेरे लिए भी कभी कोई चीज़ नहीं लेकर आए। लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने खुद जाकर ये सब चीज़ें पसंद किया है, तो गिफ्ट के तौर पर ही रख लो। ताई अम्मी मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली। सॉरी, मैं ये सब कुछ नहीं रख सकती। वो क्या है, मुझे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है, कभी किसी ने दिया ही नहीं और नाना जान को पसंद भी नहीं है मेरा किसी से गिफ्ट लेना। अगर अगर लूँ भी तो सिर्फ नाना जान से ही लेती हूँ, तो सॉरी, मैं नहीं रख सकती। आप ये सब ले जाए। इस दफ़ा उसने सारे बैग्स बेड से उठाते हुए ताई अम्मी के हाथ में पकड़ा दिए थे। आइंदा प्लीज़ मेरे लिए कुछ लाने से पहले आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं मना कर सकूँ। उफ, यू डोंट माइंड, मुझे आराम करना है। वो उन दोनों के चेहरे देखते हुए बोली, जहाँ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। मतलब साफ था कि मेरे कमरे से निकल जाए, मैं आराम करना चाहती हूँ। बेटा, बिल्कुल हम जा रहे हैं, तुम भी ज़रा कमरे से बाहर निकला करो, ताकि तुम घर वालों के साथ घुल मिल सको। मुझे अकेले रहने की आदत है। रिदम उनकी बात काट गई थी। तो बेटा, आदत बदलने की कोशिश करो। ताया अब्बू के कुछ भी बोलने से पहले ही ताई अम्मी ने कहा था। मैं क्यों अपना आप बदलूं, मैं जैसी थी वैसी हूँ। मुझे झूठे दिखावे करना नहीं आता। अगर दिल में इज्जत और मोहब्बत ना हो, तो मैं मुंह पर भी अच्छी नहीं बनूंगी। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ। कल तक आप लोगों को मेरी माँ पसंद नहीं थी, तो आज उसकी बेटी अपने लिए अजीज कैसे हो गई? आपके लिए इतनी अजीज कैसे हो गई? कल तक आप लोग मेरे बाप की खुशी में खुश नहीं थे, तो आज मुझसे खुशगवार ताल्लुकात क्यों बनाना चाहते हैं? मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं आई, सिर्फ एक मजबूरी की वजह से आई हूँ और जल्दी चली जाऊँगी। मुझे यहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहना, तो प्लीज़ आप भी ये सब कुछ मत करें। मेरे सामने ये झूठे मोहब्बत के दिखावे ना करें। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा से अकेली थी और आगे भी अकेली ही रहूँगी। वो अपनी बात ख़त्म करती उनके कुछ बोलने से पहले ही जाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि वो दोनों खामोशी से इस कमरे से निकल आए थे और उनके वहां रुकने का कोई मकसद ही ना था। दूसरी तरफ, दिशम, तुम कमरे के अंदर आओ, वहां बाहर क्यों खड़ी हो? वो दिशम को दरवाजे से बाहर निकलते देखकर कहने लगे थे, जबकि वो जो इजाज़त मांगने वाली थी, उनके खुद बुला लेने पर वो अंदर दाखिल हो गई। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती दादा जान, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं जानती हूँ आपको हर मामले की तरह इसमें भी वो सही और बाकी सारे गलत लगते होंगे। इसीलिए मैं आपको बस इतना कहने आई हूँ कि मुझे आप इज्जत का थोड़ा पास रखने दें। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। वो एक ही सांस में बोलती चली गई थी, जबकि कमरे के अंदर दाखिल होते खुदाश के कदम वहीं रुक गए थे। दिशम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तुम लोगों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। दादा जान, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। दादा जान पता नहीं क्या क्या बोलने वाले थे कि वो बोल उठी। बेशक इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, बताओ क्या किया है तुमने? वो गुस्से से उठकर खड़े हो गए। वाह, मतलब कि थप्पड़ खाकर भी गलती मेरी ही है और वो शख्स आपको नजर नहीं आ रहा, जो अपनी बहन का कत्ल करके आराम से आज़ाद घूम रहा है? उसके चेहरे पर एक ज़रा सी भी इस बात की पशेमानी नहीं है कि उसने किसी और का नहीं बल्कि अपनी सगी बहन का कत्ल कर दिया। ना उसे इस बात का दुख है कि उसकी बहन मर गई। आप चाहते हैं कि ऐसे बेमुरवत बेरहम इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बताएं, आप मेरा साथ देंगे या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारा इस मामले में कोई साथ नहीं दूंगा। दिशम, जिन बातों के बारे में तुम नहीं जानती हो, उनको यहीं पर ख़त्म कर दो। हरम के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सारे मामलात हमारे हैं, हम देख लेंगे। तुम बस दुआ करो और जो तुम्हारा काम है तुम्हें वो करना है। अपने शौहर की खिदमत करो, उसकी दिलजोई करो, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दो और उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो।
तुम दोनों खुश रहा करो, मैं तुम लोगों को जल्दी ही घूमने फिरने के लिए भेजता हूँ। शादी के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारा। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के करीब रहने की ज़रूरत है। शुमारी इलाकों में ट्रिप के लिए जाना था ना तुम्हें, मैं तुम्हें और खुदाश को वहाँ भेजता हूँ। इन सब चीज़ों से निकल कर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इंजॉय करो। मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ उसने मुझे थप्पड़ मारा है और आप मुझे उसके साथ भेज रहे हैं। बेटा, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, बात तलाक तक कोई नहीं लेकर जाता। और जहाँ तक हरम वाला मामला है, उसमें तुम कुछ भी बोलने का हक नहीं रखती। खुदाश बिल्कुल सही है और मैं इस मामले पर किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं हरम का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता और मैं इस आदमी का नाम नहीं सुनना चाहती। उसके साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकती और आप मुझे उसके साथ बाहर भेज रहे हैं। नफरत है मुझे उस आदमी से, नहीं रहना मुझे उसके साथ। मुझे तलाक चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो ये मत सोचिएगा कि मैं हार जाऊंगी। आपको हरम का नाम नहीं सुनना तो कोई नहीं लेगा हरम का नाम, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, ये याद रखिएगा। उनके समझाने बुझाने का ये असर हुआ था कि वो मज़ीद गुस्से में उनके सामने बदतमीज़ी कर गई थी और खुदाश की बर्दाश्त भी यहीं तक थी। तभी वो कमरे में दाखिल हो गया। दादा जान, इसका दिमाग ख़राब है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इसके तलाक लेने के सारे शौक़ मैं पूरे करता हूँ और आपको हमें भी जहाँ भेजना है वहाँ भेजने की तैयारी करें, हम ज़रूर जाएंगे। उनसे कहते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गया था। जबकि दादा जान परेशानी से बैठ गए थे। अल्लाह ना करे कि हरम के किसी भी राज से खुदाश का घर खराब हो जाए। ये नहीं था कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहते थे, लेकिन इस राज के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जानी थी और शायद उनका खून हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। अब माजी, निकाह मुबारक हो, वो उसके कान में गुनगुनाया था। आपको भी मुबारक हो, अल्लाह पाक ये सफ़र नेक करे। सागर ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा, परेशान मत हो। अल्लाह हमारे साथ है और जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ सारी कायनात होती है। उसे खुद से लगाते हुए वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था। आज उनका एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। वो ये तो जानते थे कि ज़िंदगी के इस सफ़र में सिवाय भागने के और अपनों से दूर जाने के और कुछ भी हासिल ना होगा, लेकिन एक दर्द भरी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर ये ज़िंदगी थी जिसमें वो अपने हम सफ़र के हम कदम थी। वादा करता हूँ अफशीन, मैं तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मुहाफिज बनकर तुम्हारी खिदमत करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। वो उसे अपना यकीन दिला रहा था और उसे उसकी हर बात पर अफशीन को दिलो जान से यकीन था। दूसरी तरफ सागर के अचानक घर से गायब होने के साथ ही अफशीन के घर से गायब होने की खबर भी फैल चुकी थी। वो बहुत बार अफशीन का नाम लेकर उन सबको बता चुका था कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कोई भी कदम उठाएगा वो इन लोगों ने सोचा ही नहीं था। सागर एक लड़की को घर से भगा कर ले गया था और वो भी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उनके दुश्मन की बेटी। वो लोग जितना सोच रहे थे उतना ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अगर वो लोग सागर को पकड़ने में कामयाब हो गए तो वो उसे जान से मार डालेंगे, जबकि उनका अपना भी गुस्से से बुरा हाल था। वो भी यही सोच रहे थे कि अगर यही सागर ने ही ये हरकत की हुई है तो उसका वही हाल होगा जो इस गांव के बाकी लोगों का होता आया है। ये सज़ाएं उन्होंने ही बनाई थी और ये कानून उन पर भी लागू होते थे, लेकिन अगर वाकई अफशीन सागर के साथ घर से भागी है तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या ये गांव के लोग उसे जीने देंगे? नहीं, उसके साथ वही होगा जो आज तक होता आया है और जो अफशीन का बाप करता है, यानी कि उसे सरेआम कारी कर दिया जाएगा और उनका बेटा कत्ल हो जाएगा। सागर को ढूंढो, उसे कैसे भी घर वापस लेकर आओ और उस लड़की को वहीं दफा करो जहां वो है। हमें हर कीमत पर ये बात साबित करनी होगी कि वो लड़की हमारे सागर के साथ नहीं भागी। बाबा जान परेशानी से दाएं बाएं चलते हुए उन सबको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपने बेटे को उन सब से निकालना आसान तो हरगिज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ अफशीन ने भी सागर का नाम लेकर सबको बताया था कि वो सागर नामी बंदे से मोहब्बत करती है जो उन लोगों का दुश्मन है। 3 दिन में अफशीन का निकाह था और निकाह से पहले जो कदम उसने उठाया था वो उसकी ज़िंदगी को मौत की तरफ ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। दूसरी तरफ
چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ خبردار، جو مجھ پر اپنا حق چلانے کی کوشش کی، میں تمہاری حکم کی غلام نہیں ہوں۔ سنا تم نے، خداش کا عظمی نفرت ہے مجھے تم سے، میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے، وہ چلائے جا رہی تھی جبکہ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ہی تماشا دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ پہلے حرم کی موت نے اس گھر میں خاموشی کا سما باندھ دیا تھا، اور اب خداش اور دیشم کے آئے دن کی ہونے والی لڑائیوں نے گھر کا ماحول ہی خراب کر دیا تھا۔ پہلے اپنی ہی بیٹی کی موت کو لے کر تائی امی کا اتنا ٹھنڈا اور سرد انداز، جیسے انہیں اپنی بیٹی کی موت سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، اور پھر بھی دیشم کا ضرورت سے زیادہ احتجاج ان سب کو حیرانگیوں کی گہرائیوں میں پہنچا چکا تھا۔ دیشم حرم کی بہت کلوز تھی، وہ ایک دوسرے کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ سامی اور دیدم نے تو ڈر کے مارے آواز ہی نہ اٹھائی تھی، جبکہ دیشم نے انتہا کر دی تھی۔ دادا جان سے سوال پوچھنے کا حق کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، سب کی طرف سے خاموشی تھی۔ جب ماں باپ نے ہی اس قصے کو ختم کر دیا تھا تو تایا چاچا بیچ میں بول کر کون سا تیر مار لیتے۔ اگر ماں باپ کو ہی بیٹی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو پھر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اسی لیے حرم کی موت کے بعد گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، جس سے آج کل دیشم کی چیخ و پکار توڑ رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں دھکا دیا، ساتھ ہی دروازہ بھی بند کر دیا کہ آواز باہر نہ جائے۔ پھر تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھ سے طلاق لوگی؟ ہاں، طلاق لے کر کہاں جاؤ گی؟ کوئی ٹھکانہ ہے تمہارا؟ کیا کوئی ٹھکانہ ہوگا تمہارے تو ماں باپ کا ٹھکانہ نہیں ہے، سب لوگ میرے گھر میں ہی رہ رہے ہیں۔ گھر کی شے پر اتنا اچھل رہی ہو دیشم خداش کاظمی؟ کس کی شے پر اتنا اچھل رہی ہو دیشم خداش کاظمی؟ تمہارا باپ نکاح پر حق مہر میں 2 کروڑ کی رقم لکھوا کر تم سے طلاق لینے کا حق چھین چکا ہے۔ نکاح نامے پر تمہیں کسی طرح کا طلاق لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تم کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی جب تک میں تمہیں خود اپنی مرضی سے نہ چھوڑوں۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی عدالت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تم آج بھی میرے نام سے جانی پہچانی جا رہی ہو اور قیامت کے دن تک میرے نام سے ہی جانی جاؤ گی۔ تم پر تو کیا، تمہاری ایک ایک سانس پر میرا حق ہے۔ خداش کاظمی ہوں میں، دیشم جانم۔ میں نے زندگی کے کسی موڑ پر کوئی غلطی نہیں کی تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے نکاح کے وقت تم جیسی جذباتی اور بے وقوف لڑکی کو ایسا کوئی حق دوں گا جس سے تم میری زندگی برباد کر سکو؟ تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری، اسی لیے اب منہ بند کر کے آرام سے اس کمرے میں بیٹھی رہو، ورنہ میں اگر شوہر والے حق جتانے پر آ گیا تو صبح سب سے منہ چھپاتے پھرو گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم وہ کام کرو جو بیویاں کرتی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے دادا جان؟ کہ خدمت کرو، میری دلجوئی کا سامان کرو، چیخنا چلانا بند کر کے اپنی زندگی کی طرف دیکھو۔ لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی نامکمل وکالت جھاڑنی ہے، وہ آہ بھر کر بولا۔ تو اس کے نامکمل لفظ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں کسی چیز کو نہیں مانتی، تم پر کیس کروں گی اور آئی لو یو دیشم۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے والی تھی جب اس کی آواز آئی۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، آج سے نہیں ہمیشہ سے، زندگی کی ایک ایک پل میں میں نے چاہا ہے تمہیں، تمہاری ہر بات ہر چیز عزیز ہے مجھے۔ اتنی محبت میں نے کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کی ہے دیشم۔ تم مجھے تکلیف دیتی ہو جب طلاق کے لیے کہتی ہو، جب دور جانے کی بات کرتی ہو دیشم۔ مجھے تکلیف مت دو، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ تھک ہار کر اس کے سامنے اپنے جذبات بیان کر گیا۔ جھوٹ! وہ ایک لفظ میں اس کے جذبات کو بے مول کر گئی تھی۔ اس کے اس ایک لفظ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ اتنا بے یقین تھا اس کے لیے۔ میں سچ بول رہا ہوں دیشم، اسے لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی سے بول رہا ہو۔ آپ مجھے ہر طریقے سے بے بس کر چکے ہیں خداش کاظمی، تو یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اپنی فتح کا جھنڈا میرے جسم و جان پر لگا کے اپنی انا کو تسکین پہنچا سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے سامنے جھوٹی محبت کا ڈرامہ مت کیجیے گا۔ محبت بہت پاک لفظ ہے، اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ کی اصل سے واقف ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی محبت کو جھٹلاتی نفرت سے بولی تھی، اور بس یہیں تک برداشت تھی خداش کاظمی کی۔ وہ اپنی محبت کو اس لڑکی کے سامنے بے مول کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف
ले हरम मैडम, सारा काम हो गया और कोई ऑर्डर है तो बताए, हम वो भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्याम ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जो सारा काम होने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर और काम हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। सर शौहर आपको फ़ोन कर लेंगे। आज तो सचमुच आपने हमारा इतना सारा काम करवाया। उसने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, एक छोटा मोटा मासूम सा थैंक यू मुझे भी बोल दो, मैंने भी अपनी कमर तोड़ी है जान। उसकी सारी तवज्जो श्याम की तरफ उससे बर्दाश्त न हुई थी। उसका दिल चाहा कि वो श्याम को ही गायब कर दे, जो कब से सिर्फ उसे अहमियत दे रही थी। आपको क्या थैंक यू बोलूँ, आप तो घर के आदमी हैं, मेरा अकेले का घर खूबसूरत थोड़ी हुआ है, आपका भी तो हुआ है। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने इतना दिमाग लड़ाया है ना श्याम सर। वो उसे थैंक यू बोलने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसीलिए मुंह बनाकर बोली, तुम्हें इसको थैंक यू बोलना चाहिए श्याम, हमने तो सिर्फ ये सामान उठाकर इधर उधर किया है, दिमाग तो इसका ही था ना। और वैसे भी जिस्मानी थकन से कहीं ज़्यादा होती है दिमाग की थकन, वो यकीनन तुमसे ज़्यादा थक चुकी होगी। श्याम ने उसकी हालत का मजा लेते हुए कहा, श्याम सर आपकी बर्थडे कब है? इसकी तरफ उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। गुड़िया, मेरी बर्थडे तो बहुत दूर है, जून में, वो उसे देखते हुए बोला। और शौहर सर की?" उसने बार बार ये शाम सर कहने पर टोका, तो उसने खुद ही उसका नाम बना लिया था, जिस पर वो उसे सिर्फ घूर ही सका था। मेरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे कोई गिफ्ट देना है? वो मुस्कुराते हुए उसके नन्हे से दिमाग के अंदर की बात जाने जानने की खातिर बोला। नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना और ना ही मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखिएगा। मैं तो बच्ची हूँ, वीरू कहते हैं बच्चे गिफ्ट्स नहीं लेते हैं, और वैसे भी बच्चों से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। मैं तो ट्रीट लेने के लिए कह रही हूँ, आप कब तक मुझे ट्रीट देंगे? अपने बर्थडे की उसने तफसील से बताया, तो श्याम का कहकहा बुलंद हुआ। क्या चाहिए तुम्हें ट्रीट में? मुस्कुराते हुए पूछने लगा। अब वो उसे कुछ दिलाने के लिए उसे अपने बर्थडे का वेट नहीं करवा सकता था। मुझे वो सब कुछ जो पार्टी में होता है, एक अदद चॉकलेट केक मिल जाए, 2 से 3 आइसक्रीम, और बस यही कुछ। उसने अपनी फरमाइश नोट करवाई थी। कहीं बाहर डिनर ना करें, उसने श्याम की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, सिर्फ हरम के पेपर देने आया था, तुम हरम को ले जाओ। सैम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। वो चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। मैं कपड़े चेंज कर गया हूँ। वो अभी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा थे, जब एक्साइटेड सी हरम की आवाज़ सुनाई दी। या शाम ने उसे जाने का इशारा किया तो फौरन ही कमरे की तरफ चली गई थी। कितनी मासूम है ना ये, सयाम ने उसके जाने पर कहा। मासूम तो बहुत है, लेकिन कुछ तो है जिसका पर्दा है। सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता सयाम, कोई तो राज है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत चालाक है, कोई प्लानिंग करके यहाँ आई है, लेकिन कुछ तो है जो वो छुपा रही है, और मैं वो जानना चाहता हूँ। वो उसे देखते हुए कहने लगा तो सयाम का दिल चाहा कि वो उसे इस दिन के बारे में सारी बात बता दे, जब हरम ने सयाम के मोबाइल पर अपने दादा जान को फ़ोन किया था। उसके मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डर लगा था, जिसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड थी। लेकिन नहीं, वो अपने दोस्त का घर बसते हुए देखना चाहता था, वो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहता था। उसे दुख देने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए खामोशी से उठ गया। मुझे तो कोई पर्दा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हरम यहाँ आकर खुश है। तुम्हें अभी शौहर के रूप में ना सही, लेकिन एक दोस्त के रूप में कबूल कर चुकी है, और मेरा यही ख्याल है कि तुम्हें अपने दिमाग से फजूल सोच निकालते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो कहकर वहाँ से जा चुका था, जबकि वो हरम के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। कौन से रंग का ड्रेस चाहिए तुम्हें? जरियाम ने उसे देखते हुए पूछा। दूसरी तरफ, जो आपको पसंद हो, उसका मासूम सा जवाब आया। वो हाँ में सर हिलाता खुद ही उसके लिए कपड़े देखने लगा। ये प्यारा लगेगा, तुम पर सूट करेगा, क्या कहती हो? वो उसे एक खूबसूरत सी ड्रेस दिखाते हुए पूछने लगा। जो आपको बेहतर लगे। वो उसका बाजू थामते हुए ड्रेस देख रही थी। जरिया मुस्कुराया। जूते किस तरह के चाहिए? उसने पूछा। जो आपको अच्छे लगे वैसे। उसका जवाब मासूमियत से भरपूर था। जरियाम की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नाइटी कौन से कलर की लूं? उसने शरारत से पूछा। जी जी, छोड़ो, तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, जो मुझे पसंद आए, क्या कहती हो? वो आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। नहीं, मैं कैसे? जैसे बाकी सब कुछ मेरी मर्जी से पहनूंगी, वो भी मेरी मर्जी से पहन लेना। वो तो मैं आप
लड़की मेरे सामने ये वो मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये बेमानी अल्फाज। वो सख्ती से बोला। मैं नहीं पहन सकती ये बेहया लिबास। उसने जुमला मुकम्मल किया। इतना सब कुछ मेरी मर्जी से ले रही हो, जैसे तुम्हारी अपनी कोई पसंद ही नहीं, तो सोचा ये भी दिला देता हूँ। नहीं ना, वो तो मैं इसलिए आपकी मर्जी से ले रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। हाँ तो वो भी सिर्फ मुझे ही पहन कर दिखाना, बंद कमरे में। वो अब भी बाज ना आया था। जरियाम, मैं नहीं प्लीज़। वो भी बोल रही थी कि जरियाम ने अचानक झुककर उसके लबों पर प्यार भरी मेहर लगाई और पीछे हटा। अमाया को तो यकीन ही नहीं आया कि बीच मार्केट में ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। उसके मुंह खोल कर आगे पीछे देखने पर वो बड़ी मोहब्बत से बोला। जरियाम, क्या हो गया है आपको? हम बीच बाजार में खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे? उसने उसी जगह का एहसास दिलाना चाहा। हाँ तो मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ज़ाती मिल्कियत पर हक जता रहा हूँ। कोई कौन होता है कुछ कहने वाला? वो पुरसुकून था। उफ अल्लाह, कितने बेबाक है आप। जरियाम, अगर किसी ने देख लिया होता तो? किसी ने नहीं देखा जाने मन, और कोई देख लेता तो क्या क्या वो उखाड़ लेता। चलो आओ दूसरे काउंटर पर चलते हैं, कुछ और लेते हैं। वो उसका हाथ थामे उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो उसे सुबह सुबह ही अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आ गया था। उसने 1000 बार मना किया कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी सुन ही कहाँ रहा था। वो तो सिर्फ अपनी कर रहा था। क्या हुआ, थक गई हो क्या? कुछ देर आराम करना चाहोगी? आओ तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। वो कहकर उसे नीचे की जानिब लेकर जाने लगा, जबकि वो बिना कुछ भी बोले उसके साथ आने लगी थी। वो कहाँ उसकी सुनता था, करनी तो उसने अपनी ही थी। तो फिर बार बार मना करने की या उसे रोकने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो कह रहा था बिल्कुल ठीक था। इसी सोच के साथ वो उसके साथ नीचे आ रही थी, जब अचानक उसका ध्यान सामने की तरफ गया। उसने बस एक नज़र उसे देखा, फिर निगाह इस अंदाज में फेर ली जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं, और दिलो जान से दुआ की कि जरियाम की नज़र उसकी तरफ ना जाए। तुमने कुछ कोई अच्छे अच्छे नाम सोचे हमारे होने वाले बच्चे के लिए? वैसे हमारा सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि दादा जान अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन जब बेबी दुनिया में आएगा ना, तब देखना तुम। वो तो हमें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं दादा जान। वो मज़े से उससे बातें कर रहा था, जबकि अमाया बार बार चोर नज़रों से दाखिली एरिया की तरफ देख रही थी, जहाँ से वो बाहर जा रहा था। अब हम सीधे घर चलेंगे ना? वो उसे देखकर पूछने लगी। इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? आज घर से निकल आए हैं तो थोड़ी देर इंजॉय कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अभी तो हम समंदर पर चलेंगे, थोड़ी देर लहरों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। बल्कि ये काम तुम करना, मैं तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करूँगा। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है लहरों के साथ छेड़छाड़ करने का। और आप? अच्छा, लहरों के साथ नहीं, मेरे साथ कर लेना। वो उसकी बात काटते हुए ऑफर देने लगा। बहुत बेशर्मी वाली बातें करते हैं आप जरिया। वो उसे घूर कर बोली। लेकिन जान, मैंने कौन सी बेशर्मी वाली बात की है, ज़रा एक्सप्लेन करो। मैं तो लहरों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मासूम बना। ये मतलब तुमने क्या सोचा? कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं वहाँ समंदर पर तुम्हें किस? छी 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 अमाया, तुम्हारी सोच भी ना, गंदी लड़की। वो शरारत से भरपूर अंदाज हुए अपनाए हुए था। वैसे अगर तुम्हें किस चाहिए तो आई एम रेडी, लेकिन यहाँ होटल में इतने लोगों के बीच अच्छा थोड़ी लगेगा। वो मासूम बना। अच्छा तो जब थोड़ी देर पहले वहाँ मार्केट में आपने मुझे, ओके ओके बाबा ठीक है, मैं किस करूँगा तुम्हें समंदर पर, इट्स ओके। इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है इसमें? वो उसकी बात काटते हुए बोला तो माया को ढेर सारी शर्मिंदगी ने आ लिया। वो उससे बातों में फंसा चुका था। आप बहुत बुरे हैं जरिया। वो बस इतना ही कह सकी, जबकि उसे इतना शर्माते देख वो खुलकर हंस रहा था। दादा जान टिकट बुक करवा चुके हैं हमारी हमें कल शाम को निकलना है। सामान पैक कर लेना। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बदतमीजी से गोया हुई। तुमसे किसी ने नहीं पूछा और ना ही तुमसे कोई पूछेगा। अगर कल शाम तक तैयार नहीं हुई तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा, और ये तो तुम जानती हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे मामले में अब मुझे तुम्हारी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? वो उसके सामने आकर पूछने लगी। अंदाज में वाज़ेह बदतमीज़ी का आंसर शामिल था। तुम्हारी नज़रों में ज़बरदस्ती क्या है दिशम? मैं नहीं जानता। मेरी नज़रों में ये मेरा हक़ है, और तुम मेरे किसी हक़ से पीछे हटने का कोई हक़ नहीं रखती। तैयारी कर लो, हमें कल शाम को यहाँ से निकलना है। अब कोई फजूल बहस नहीं।
मैं मज़ीद लड़ने के मूड में नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी सुनने के। आगे बढ़ो, जो हुआ सब भूल जाओ, ये इसी तरह से लिखा था। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ जीने की, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। तुम्हारी तलाक लेने वाली ख्वाहिश तो मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। ये ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ ही बर्बाद करनी पड़ेगी, अपनी मर्ज़ी से या फिर बकौल तुम्हारे मैं ज़बरदस्ती करूँगा, लेकिन हम रहेंगे साथ हमेशा। हर कदम पर मैं हर वो राह बंद कर दूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। बेहतर है कि पुरानी सारी बातें भूल कर अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं कभी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूँगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट के लिए हर हद पार कर जाऊँगा। मुझे यकीन है हम दोनों एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फजूल बहस व तकरार में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूँगा। तुम्हें वकील बनना है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे वकील बनने के बाद तुम अपना ये केस खुद लड़ पाओगी, है ना? ग्रेट आइडिया। कितना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें जो खुद तुम्हें जीतने के लिए तरीके बता रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप कभी कामयाब नहीं होंगे खुदाश का आज़मी इसमें। अगर आपने मेरे साथ किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, अच्छा नहीं होगा। अगर आपने अपनी झूठी मोहब्बत का जाल बिछाकर मुझे फंसाने की कोशिश की, तो याद रखिएगा मैं आप पर आपकी ज़िंदगी की हर सांस तंग कर दूंगी। मुझे आपसे डर नहीं लगता और ना ही मैं बाकी की तरह आपकी जी हुजूरी करूंगी। आपकी कोई भी ख्वाहिश मेरे वजूद से पूरी नहीं होगी, याद रखिएगा। मेरे साथ आपको ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरे साथ आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, आप और कुछ ना। वो बोल ही रही थी जब खुदाश ने अचानक उसके बालों को थामते हुए उसे अपने करीब किया और उसके नाजुक गदास लबों पर अपने होंठ रख दिए। इंतहाई मोहब्बत से वो उसके लबों से अपने तृष्णा लबों की तशनगी मिटाने लगा। दिशम की मज़ाहमत ने उसकी गिरफ्त सख्त कर दी थी। वो जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, वो उतना ही उसे खुद में कैद करता चला जा रहा था। उसकी गिरफ्त में सख्ती बढ़ने लगी तो दिशम की सांसें उखड़ने लगी। उसे खुद से दूर करने की हर कोशिश में नाकाम होते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और ये वो वाहिद हुर्बा था जिससे वो खुदाश को खुद से दूर कर सकती थी। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी। अगर लड़ नहीं सकती तो मुकाबले पर क्यों उतरती हो तुम? और उसके लबों को आज़ाद करता उसका आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए बोला, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे गम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट, हर चीज़ अजीज़ है मुझे। दिशम, मैं तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बकौल तुम्हारे मैं ज़बरदस्ती करने में भी कोई आर महसूस नहीं करूँगा। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ इस नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हो या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती मजबूर करता हूँ। यकीन करो, जिसे मोहब्बत करना आता है वो ज़बरदस्ती भी कर सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी मर्ज़ी अहमियत रखती है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊँ। मैं तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर देना चाहता हूँ। तैयारी करो, हमने कल शाम को यहाँ से निकलना है और वहाँ हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से, कोई गिला कोई शिकवा नहीं, एक पुरसुकून ज़िंदगी से शुरुआत करते हैं। वो उसके माथे को चूमते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि दिशम सर झटक कर रह गई। जो वो चाहता था वो मुमकिन नहीं था। वो कभी उसके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकती थी। उसे उस शख्स से नफ़रत हो चुकी थी, और जिससे नफ़रत की जाए वो कभी मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकता। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहता था, जबकि हरम की ज़ात को भूलना उसके लिए आसान नहीं था, और ना ही एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी रहना। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा इस स्टोरी के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।